World Development Foundation (WDF) has developed a radio automation package known as the Radio Broadcasting System (RBS). RBS has fully integrated radio automation software which turns the PC into a fully automated radio station. इसमें 3 फंक्शंस हैं। एक क्या है कि इससे हम ब्रॉडकास्टिंग करने जा रहे हैं, दूसरा क्या करने कि हम इसमें एक्विजिशन करके और उसको डायरेक्टरी में रखने जा रहे हैं, और तीसरा क्या फंक्शन है कि सारा लॉगिंग इसके अंदर होता रहता है जितना भी आप करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम 3 तरीके का होता है। एक प्रोग्राम हुआ जो हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है। तो उसमें आपका जो आप पढ़ाने का प्रोग्राम डाल सकते हैं, उसमें आप म्यूजिक का प्रोग्राम डाल सकते हैं, उसमें ड्रामा का प्रोग्राम डाल सकते हैं। यू कैन पुट इंस्ट्रूमेंटल एनीथिंग यू वांट टू पुट इट, है ना, साउंड ट्रैक डालना है, कुछ भी डालना है, एवरी प्रोग्राम इज देयर। There are different types of user. One is the user for only radio jockey. उसका काम है प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना. They should not delete all the files. ठीक है? They are called radio jockey. They can't delete a file, but they can create new file. स्टोर कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता. तो डिलीट का ऑप्शन निकल गया उनका. दूसरा क्या होता है जो मैनेजमेंट कर रहा है कि उसमें निकाला सारा बनाया. Third is the super user who is having all controls for the RBS. He can take a backup, he can delete the file, or he can restore the files. तो 3 टाइप के 3 स्टेज के इसमें पासवर्ड्स होते हैं. First, we will log into it. The login screen will look like this. After logging in, we will enter the welcome screen. On the top of the welcome screen, there is a horizontal menu in which the following options are present. File Studio Programs Commercial Promo Tools option Utility. On the vertical side, it has following options: Studio Log Backup Restore Help. Selecting the Studio tab on the welcome screen provides such a screen. We can see many small screens here. The program, commercials, promos stored in the database are displayed on screen A. Screen A also allows searches of various programs from the database based on the search criteria. Any one of them may be selected and brought to screen B on this screen. We can also do the scheduling of playlists. The playlist is prepared in screen C. Either it can be played instantly or stored for later playback. If a playlist is selected, it is displayed on screen C. On playback, the history is displayed on screen D. Screen F allows selection of previously stored playlist, programs, commercials, promos. It also has a facility for switching to the main screen, invoking a recorder, invoking internet, help, contact us or exit screen. Screen A allows control of mic and also the volume etc. Screen H shows the program, commercial, promo being played and the position. Screen I allow customization and also placement of the logo. And then this is commercial. Commercial का मतलब ये होता है कि your radio station will also like to earn some money, and that money is earned by running some commercial programs. Okay? तो जैसे किताब वाले से आप बात करेंगे, उससे कहेंगे भाई तेरा किताब हमारे बच्चे खरीदेंगे ना, ले आओ कमर्शियल इसमें डालो, तो सारे बच्चे तुम्हारे सुन रहे हैं, तो देखो किताब खरीदना है, कॉपी खरीदना है, और समथिंग रिलेटेड व्हाटएवर इट इज देयर, तो उससे आप कमर्शियल कर सकते हैं. प्रोमो इज वेयर अभी जो हम बात कर रहे थे जो बनाते हैं, दैट गोज इनटू प्रोमो. तो 3 जगह में जाएगा. इफ आई गो टू प्रोग्राम, यहाँ डेटाबेस में ऑलरेडी प्रोग्राम होगा, ये देखिए इतने प्रोग्राम डाल रखा है, ठीक है ना. तो अब ये देखिए आशा भोसले है ना, ये प्रोग्राम है आशा भोसले है. अब अगर हम क्या करें इसमें, ये सब बहुत से प्रोग्राम है, चिड़िया भूल गई, फलाना दिस दैट, मैसेजेस है बहुत सा जो है वो
इनके जहाँ जहाँ हमने कराया एजुकेशन का प्रोग्राम है, एग्री एजुकेशन का प्रोग्राम है, लाइक दैट. एंड यू कैन ऑलवेज ऐड मोर प्रोग्राम इफ यू वांट टू डू इट. एंड व्हाट विल यू डू इज कि अगर हमारे प्रोग्राम नाम से हम खोजना चाहें, तो अगर मान लो प्रोग्राम नाम से हम खोजना चाहें और हम केवल आशा भोसले डाल दें या आशा डाल दें, कैटेगरी एजुकेशन वालों डाल दें. आई हैव गॉट ओनली 2 प्रोग्राम, क्लास पी BA पार्ट 1. तो डेटाबेस से खुद खोज के निकालना है, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. 500 प्रोग्राम होगा तो आप खोजोगे क्या? ठीक है ना. तो अब देखिए इसमें हमने डेटाबेस बनाया था, फिलॉसफी BA पार्ट 1, दिस इज 1 प्रोग्राम. ठीक है ना. इफ आई वांट आई कैन चेक फ्रॉम हियर आल्सो बाय lecture series based on water syllabus वो भी by लगा. University Grants हाँ, Commission. स्पीकर काफी This अच्छा. lecture series is also available on government. This type of program will come to हम एजुकेशन का करना है. इसी का क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम है. ये भी और आपको सुनेंगे बाद में. In this part we present audio, video and text of the lecture with reference and glossary. Now we listen to the lecture of Professor Vedantia Electronics. ओके, ये बाद में आपको दिखाएंगे प्रोग्राम देखने का. अच्छा, इसी एग्री एजुकेशन का प्रोग्राम है. सो यू कैन टेक अनदर वन प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का. अगर हमने यहाँ डाल दिया, देखिए तो आई गेट सो मेनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अबाउट इट. एंड यू कैन ऐड मोर प्रोग्राम इफ रिक्वायर्ड, वो भी बता देंगे. है ना. मैं यहाँ से कुछ नहीं करना, ऐड न्यू करिए और ऐड न्यू करके आप प्रोग्राम ये बता दीजिए राइट्स वाला. राइट्स वाला. हाँ. You can make a backup of your RBS databases to any device. Backup refers to the copying of files or databases to a secondary location for preservation. This utility allows the restoration of the database. Restoration is the process of copying backup data from secondary storage and restoring it to its original location or a new location. ये हो गया. नाउ यू लॉग इन. ठीक है. अब आपने लॉग इन कर लिया. ठीक है. लॉग इन करने के बाद क्या होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. ओके, 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. नाउ व्हेन यू विल गो हियर इन द प्रोग्राम थिंग, ओके, देन ऑल योर प्रोग्राम्स विल बी इन ए डेटाबेस. जब आपके पास 1000 प्रोग्राम हो जाएगा, 2000 प्रोग्राम होगा, 1000 गाने होंगे, आपको मिलेगा कैसे? लिस्टर ने कहा मुझे तो झुमरी तलैया से मैं बोल रहा हूँ, ये गाना सुना दो. हाउ डू यू गेट दैट? ठीक है. एवरीथिंग इज इन द डेटाबेस एंड यू वांट टू गेट द प्रोग्राम इमीडिएटली फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है. तो जितने प्रोग्राम हैं दैट विल गो इनटू द डेटाबेस. सो इफ यू गो हियर एंड कनेक्ट टू द डेटाबेस, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्काइव. ठीक है. This is the part of archive. Now what is there is कि there are different genres of program. जैसे कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम हो सकता है, कुछ आपका प्रोग्राम हो सकता है जो टॉक है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम हो सकता है. तो अब इसमें हम प्रोग्राम जो है, तो ये आपको ऐसे खाली डेटाबेस होगा, वैसे कुछ मैंने डाल रखा है जो आपका है, उसमें थोड़ा सा प्रोग्राम डाल रखा है. बट यू हैव टू क्रिएट द प्रोग्राम इन द डेटाबेस. तो यू कैन ऑलवेज ऐड न्यू फ्रॉम हियर. ओके, ये नीचे आएंगे, ऐड न्यू मिलेगा. इसका विधिवत मैनुअल आपके साथ में गया हुआ है. इट्स अवेलेबल, द मैनुअल अवेलेबल. नाउ ही सेज जब आप नया करेंगे, कोई भी नया प्रोग्राम आपने बनाया, तो इट्स व्हिच कैटेगरी यू वांट टू डू इट. ठीक है. यू कैन हैव म्यूजिक, यू कैन हैव इंस्ट्रूमेंटल, यू कैन हैव टॉक. ठीक है. तो यहाँ 3 कैटेगरी डिफाइंड है कि म्यूजिक का प्रोग्राम मतलब जितना भी गाना वाना है सब यहाँ डालिए, इंस्ट्रूमेंटल है यहाँ डालिए, और टॉक्स मैंने जो डिस्कशन का प्रोग्राम है, ड्रामा है, इसमें डालिए. ठीक है. रेसिटेशंस वगैरह भी वी कैन ऐड इन टॉप. वो अलग आएगा. दिस इज नॉट योर प्रोग्राम. यू नो देयर आर 3 टाइप प्रोग्राम. एक तो प्रोग्राम है जो बेसिक प्रोग्राम है, जो कंटेंट आप बना रहे हैं, और दूसरा जो प्रोग्राम होगा उसको प्रोमो बोलते हैं. तो जितना आप कर रहे हैं वो सब प्रोमो है. ठीक है. जितना आपने कहा कि वो
हमारा रेडियो स्टेशन सुनो फलाना करो, दे आर विल गो टू द प्रोमो, अभी डाल के दिखाते हैं। So I'm talking about, recitation. Suppose somebody is reciting a poem. So in which category will I? It is very cool. In music. ठीक है। It is a simple screen for adding details of metadata about new programs such as the title of the program, name of the program, category, subcategory, anchor, accompanist's, expert's name, language of the program, right owner etc. The metadata is to be entered for each program for search, scheduling and playback. अच्छा, then this is the rights. Now what happens is कि जो भी प्रोग्राम होता है उसका राइट होता है किसी का। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी का भी प्रोग्राम बनाइए और आप कर लीजिए, उसको आप कर लीजिए, अनलेस यू हैव पेड हिम द मनी, आधार द मनी। ठीक है, तो जो आप अगर उनसे कराते हैं, बॉलीवुड का प्रोग्राम आप ले आ रहे हैं, तब तो उससे राइट लेना पड़ेगा आपको, और उस पर आप लिख देंगे ये प्रोग्राम इसका राइट है, उसी राइट के हिसाब से आपको और उसको दिखाएंगे, देख तेरा प्रोग्राम यहाँ चला। ठीक है, एंड then you can negotiate for increasing the money or decreasing the money or whatever next year. तो राइट्स मौजूद, जो आप बना रहे हैं वहां देखिए तो सीपीवी भी तो मेरा बना हुआ प्रोग्राम है, तो यू डोंट पे एनीथिंग, दिस इज योर प्रोग्राम। अब टेक्निकली क्या होता है कि अगर आप किसी से रिकॉर्ड भी करा रहे हैं तो राइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कल वो कह सकता है हमारा प्रोग्राम क्यों करा। तो एक हम आपको छोटा सा फॉर्म दे देंगे, जब रिकॉर्डिंग करते थे उससे दस्तखत करा लेते हैं कि आई एम गिविंग दिस राइट टू दिस रेडियो स्टेशन फॉर, तो वो करके आप रखिए, तो फिर वो क्लेम नहीं करेगा कि ये तो हमारा प्रोग्राम है, आपने हमसे गाना गवाया, उसको आप तो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आप कैसे गवाओगे इस पर। तो वो एक राइट जो है बहुत जरूरी होता है कि किसका राइट है इस प्रोग्राम पर। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बीएसएफ में से किसी की वाइफ को लेकर आया कमांडर से बेबी को, उनको मैंने बोला आप एक आशा भोसले का गाना गाइए, तो वो गाना गाई। तो मान लीजिए आशा भोसले का वो गाना टी सीरीज के पास राइट है, तो अगर वो लेडी हमारे स्टूडियो में बैठ के वो गाना अगर गा रही है तो वो हम चला सकते हैं विदाउट पेइंग टी सीरीज। यस, दैट विल नॉट बी अ इशू। वो था गुलशन कुमार, दिस इज हाउ यू अर्न मनी। He used to, re-record all the songs. जूस बेचता था इधर में चांदनी चौक में बैठ के, और उसके बाद उसने क्या किया कि वो जितने सॉन्ग्स थे वो ले लिया, और सॉन्ग्स का उसने क्या करा, उसी सॉन्ग को उसने कहा ये तुम बढ़िया गाती, उसे कहा तुम गा दो, और उसके बाद उसने उसको बेचना शुरू कर दिया।